Hello and welcome to this week's edition of Politics First. Election campaigning is on in full swing in all the 5 poll-bound states. For the Bharatiya Janata Party this time around, it is said to be a prestige battle. While in Chhattisgarh and Madhya Pradesh, they are going to fight the anti-incumbency. In Delhi and Rajasthan, it's the incumbent. In this special edition of Politics First, we are going to spend time with none other but the BJP National President Rajnath Singh and travel with him to India's heartland, Madhya Pradesh. 8 a.m. Ashoka Road. We reached BJP National President Rajnath Singh's official residence in New Delhi. Before we set sailing for the day, he invited us over for breakfast. Well, we are at the official residence of Rajnath Singh. Sir, namaskar. आज आपके साथ चलेंगे सर, पूरे दिन रहेंगे मध्य प्रदेश. तो सर, आप जब ऐसी रैलीज में निकलते हैं तो सर सुबह सुबह कितना सर, आप तो 4-5 रैली एक दिन में कर रहे हैं. नहीं सर, आज तो 4 रैली है. सर, आप ये इतना सब पौष्टिक खाना खाते हैं, देखो दिन भर का हो गया पूरा. वो आपके डिसीजन के बाद सर वैसे पार्टी की सेहत काफी अच्छी हुई है. सेहत अच्छी हुई है आपके डिसीजन के बाद सर कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कैंडिडेट हो? नहीं, वैसे हमारे पार्टी की सेहत कभी बहुत नाजुक नहीं थी. 5 स्टेट्स हैं, 4 में आप कॉन्फिडेंट आप बताते हैं कि आप चारों जीत जाएंगे, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और दिल्ली, 4 राज्यों में भाजपा अपनी सरकार बनाएगी. चारों बनाएगी. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो जीत की हैट्रिक बनाएंगे. राजस्थान में इस बार सरकार बनेगी और दिल्ली में भी सरकार बनेगी. इन सारे स्टेट्स में सर आपको लगता है कि रीजनल फैक्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? रीजनल फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं. कि जब कभी भी लोकसभा के चुनाव होने वाले होते हैं तब हम अपने प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट को प्रोजेक्ट करते हैं. आपने देखा होगा कि इसके पहले अडवाणी जी थे, अडवाणी जी के पहले अटल जी थे. तो बट नेचुरल है कि जिस लीडर को हम प्रोजेक्ट करते हैं उस लीडर को ही हम जनता के बीच ठीक तरीके से पेश करते हैं. जो होर्डिंग्स होंगे, बैनर्स होंगे, पोस्टर्स होंगे, उसमें उसको हम प्रायोरिटी देते हैं, प्राथमिकता देते हैं. तो होना भी चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है. शुरुआत करते हैं आपके लिए. Breakfast done and the national president's cavalcade is now being readied for the airport. This is the National Security Guard keeping in mind the security details of Rajnath Singh, and especially after the Patna blast, even an iota of a space is not given for the slightest possible mistake. You could see on your screens the NSG commandos doing a detailed check of his car, because it is in this car which Rajnath Singh will travel from his Delhi residence right to the airport. So it's very crucial for the NSG to keep in check, and that is a regular detail. Well, this is Rajnath Singh on your screen, starting his day yet again, and you could see all these people meeting him at his Delhi residence. This is a daily affair, but today he's on his way to Madhya Pradesh, where he will be having series of rallies. 4 rallies today he's holding in Bhind and Murrena areas, and also in Gwalior today. From his national residence in the national capital, 30th Ashok Road, towards Well, this is the cavalcade of Rajnath Singh. You could see Yogesh trying to show you the cavalcade leaving his Delhi residence. He's en route to the airport right now. This is a daily affair for him, but then keeping in mind the election are right around the corner, and not only these assembly polls, because whatever happened in Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan and then in Delhi will have a direct reverberation in the 2014 general elections. We leave the Delhi airport in Rajnath Singh's chartered plane. We expect to touch down at Bhind district in Madhya Pradesh in about 1 hour. इस बार मध्य प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी. वहां के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बारे में एक कॉमन मासेज के अंदर जो परसेप्शन बना हुआ है
मैं समझता हूं कि शायद मध्य प्रदेश के इतिहास में किसी भी चीफ मिनिस्टर के बारे में ऐसा इतना अच्छा परसेप्शन शायद देखने को किसी को नहीं मिला हो। सर लेकिन डेवलपमेंट की जब बात होती है, एक पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश है जिसमें आज आप जा रहे हैं, वहां सर डेवलपमेंट आज भी बहुत बड़ा एक इशू है। भिंड है, मुरैना है, ये सब चंबल घाटी के इलाके हैं जहां कहा जाता है कि हर घर में रोटी होना हो, बंदूक जरूर है। तो डेवलपमेंट का कौन सा प्लान है सर जो इस एरिया से बिल्कुल अछूता है? आज के 10 वर्ष पहले चाहे कोई छत्तीसगढ़ गया होगा अथवा मध्य प्रदेश गया होगा, और आज यदि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश जाएगा तो उसे एक बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा। जैसे छत्तीसगढ़ में 24 आवर्स की पावर सप्लाई, मध्य प्रदेश में जाइए वहां पर भी 24 आवर्स की पावर सप्लाई। यह कोई छोटा अचीवमेंट नहीं है। आप कांग्रेस रूल किसी भी स्टेट का नाम ये बताइए जहां पर 24 आवर्स पावर की सप्लाई। सर कांग्रेस तो इसको डिनाई करती है, राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सारे जो कंप्लीट टॉप लीडरशिप है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एरिया की, वो जाती है और कहती है कि ये सारे सिर्फ नंबर्स हैं जो सीनियर लीडर्स बताते हैं, ग्राउंड रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ में जाइए वहां की जनता आपको बताएगी, मध्य प्रदेश जाइए वहां की जनता बताएगी। ठीक है, यह हो सकता है कि अब भी बहुत ऐसे कुछ गांव शेष बचे हों जहां पर कि इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए जो अन्य लॉजिस्टिक्स की आवश्यकता होती है अभी न हुआ हो, लेकिन अभी कुछ ही महीने पहले 24 आवर्स पावर सप्लाई के टारगेट को अचीव करने में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने सफलता प्राप्त की है। छत्तीसगढ़ ने तो पहले ही कर ली थी। सर पर आपको आज भी लगता है, चाहे ये असेंबली पोल्स हो, चाहे आने वाले 2014 इलेक्शन पोल्स हो, मेजर प्लान बीजेपी का डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट या किसी और तरफ जा रहा है? नहीं, डेवलपमेंट ही होगा, किसी और तरफ हम ले जाना भी नहीं चाहते। ले जाना चाहती है यदि दूसरी तरफ तो कांग्रेस ले जाना चाहती है, क्योंकि 9-10 वर्षों के अंदर कांग्रेस लेडी यूपीए गवर्नमेंट का जो फेल्योर रहा है, यह लोगों की जेहन में, लोगों के दिमाग में यह बैठा हुआ है, लोगों के अंदर आक्रोश है इस गवर्नमेंट की विफलताओं के कारण, चाहे महंगाई हो, चाहे भ्रष्टाचार हो। पर्सनल अटैक पर नरेंद्र मोदी की तरफ से भी सर एक कमेंट आया था कांग्रेस के लिए कि उनकी अगर मां की तबीयत खराब है तो शहजादे को संभाल लेनी चाहिए बागडोर रैली में। मैं चाहे आपके लीडर हो चाहे किसी और पार्टी के लीडर, मैं समझता हूं कि इसका कोई गलत अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। पर एज ए लीडर लेकिन सोनिया जी, ईश्वर न करे कि वह अस्वस्थ हो। यदि अस्वस्थता उनको आती है, किसी को आती है, आपको भी आती है, तो जल्दी स्वस्थ हो, यह हमारी कामना है। और जहां तक नरेश अग्रवाल के स्टेटमेंट का सवाल है, उन्होंने कहा कि कोई चाय बेचने वाला भारत का प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है। जी, मैं समझता हूं कि हेल्दी डेमोक्रेसी में चाय बेचने वाला हो अथवा कोई झाड़ू लगाने वाला हो, कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, वो भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, किसी राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है। Bhind is our first stop. We move with Rajnath Singh closer to the rally spot. An anxious crowd is waiting to hear from the BJP's national president. जी का स्वागत करें। हमारे मंडल के अध्यक्ष स्थानीय बच्चूलाल जी गुप्ता जी स्वागत करें। दिल्ली विधानसभा के हमारे प्रणाम करता हूँ। शिवराज सिंह चौहान दोबारा जीतेंगे नहीं? विकास सरकार बन रही 100%। सड़कों की और लाइट की और बांधों की स्थिति बहुत अच्छी है। नहरों में 50 सालों में विकास नहीं हुआ, इतना विकास हुआ 5-10 साल। हर गांव में जहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं थे, वहाँ मिडिल स्कूल थे, वहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल खोले हैं। हाँ, तो आपके हिसाब से डेवलपमेंट हुआ? डेवलपमेंट हुआ है। आपको लगता है शिवराज सिंह दोबारा जीत जाएंगे? सबसे अच्छे मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के। शिवराज सिंह जीते हैं। शिवराज सिंह आपके हिसाब से काम किया है? बिल्कुल किया। इतना कांग्रेस ने 50 साल जितना बीजेपी ने। नरेंद्र मोदी की शिवराज सिंह चौहान? मध्य प्रदेश के लिए तो शिवराज सिंह है ना, वही ना। केंद्र के लिए केंद्र के लिए हुआ है अपने वो नरेंद्र मोदी। The first rally over, we now move to a second location, Morena. पहली रैली कैसी रही सर? पहली रैली कैसी रही सर? पहली रैली अच्छी थी,
अंबा छोटा सा शहर था सर, लेकिन लोग काफी आए थे। काफी आए थे। इसीलिए मैं कहता हूं ना कि मध्य प्रदेश में भी सर्वत्र एक उत्साह है भारतीय जनता पार्टी को लेकर और यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर। We are en route in that special chopper with Rajnath Singh, but this one's going to be important because this falls in district Bhind, and the main issue here is going to be development, the plank on which the state Shivraj Singh Chauhan, Narendra Singh Tomar government has been trying to make their point for last 10 years. But at the end of the day, the basic issue, Mr. Singh, here has been that development. If Yogesh could just show the aerial view of this area, sir, ये एरिया भिंड मुरैना जो लगे हुए हैं ये अभी भी बहुत एग्रीकल्चरली डिपेंडेंट एरिया हैं, बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरली डिपेंडेंट एरिया हैं। और डेवलपमेंट की बात जहां तक की जाए, ये एरिया नटोरियस चीज़ों के बारे में ज़्यादा जाना जाता है। बस केवल एक परसेप्शन बना हुआ है। पहले कुछ चंबल घाटी में कुछ लोग पहले ऐसे रहते थे, इस एरिया का भी डेवलपमेंट पिछड़ा नहीं है। पर मैं कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में तो नहीं पिछड़ा है। यह सरकार आने के बाद यहाँ के गांवों को सड़कों से जोड़ना, यहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था को पहले से बेहतर करना, यह सब सारा काम हुआ है। यहाँ के नौजवानों को बैंकों के द्वारा लोन देना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, यह सब सारा काम इस क्षेत्र में अच्छी तरह हुआ है। Well, we've landed at the second rally spot here in Madhya Pradesh. You could see Rajnath Singh being greeted by the party office bearers here in Madhya Pradesh alongside the NSG commandos which are right next to him, keeping in mind the security detail which has significantly increased, especially after the Patna blast where Rajnath Singh was on dais and blasts were taking place. You could see this is Bhind, and this is significantly important for Rajnath Singh because in these districts the basic issue once again is of development, because poverty is still prevailing even after 10 years of Shivraj Singh government. Thus, Rajnath Singh understands whatever happens now will have a direct impact in 2014 as well. Thus, keeping in mind he's holding at least 4 to 5 rallies in a day and trying to mobilize the party cadre. We reach Morena. The local leaders and supporters have all thronged to the rally site to hear the national president. स्वागत करेंगे और हम सभी करतल ध्वनि और नारों के साथ उन सभी के स्वागत में शरीक होंगे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। Once again, he has very critically mixed local as well as national issues, where he has talked about the local infrastructure development. He has also hit out the Prime Minister of the Congress government for the alleged corruption by the Congress-led UPA government. Very clearly, Rajnath Singh not even giving an iota of a space to Congress, whether it's on the assembly polls or Congress. Even in such backward area as Bhind, he is making a point to hit out the Congress top leadership on not one but numerous points, but also understanding that it's going to the local issues, the local infrastructure development points, electricity, food, backwardness, the lack of jobs. That is something which is going to be more important. Thus, mixing all it up. And as we are speaking, Yogesh is trying to show you Rajnath Singh hitting out at Manmohan Singh and Sonia Gandhi. सरकारों की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है कि जनता के हौसले को टूटने न दे। Welcome back to Politics First. Earlier in the day, we asked certain specific questions to Rajnath Singh over the flight we took with him from Delhi to Madhya Pradesh here in Morena. Starting from the kind of language which has lately been used by senior leaders from both political parties while addressing rallies, and then the source of funds which has been raised after the EC, the Election Commission, sending a notice to Aam Aadmi Party, and then in reverse, the Aam Aadmi Party raising questions and asking interrogate or investigate the funding of the BJP and then the Congress. And also on the point that has the Bharatiya Janata Party started to blindly follow the cult of a man called Narendra Modi. Here are the excerpts. In the campaign trail, our next stop was at Indori. मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को जब से उन्होंने शासन की बागडोर इस मध्य प्रदेश में संभाली है, तब से इस मध्य प्रदेश की जनता का भरोसा और हौसला अपने कामकाज के माध्यम से कायम रखने में उन्होंने जो है सफलता हासिल की है, कामयाबी हासिल की है।
इस सच्चाई को भी कोई नकार नहीं सकता है। इसमें कहीं दो राय नहीं है। नरेंद्र मोदी की मास अपील केवल किसी क्षेत्र विशेष नहीं है, बल्कि सारे देश में है। नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, कहीं भी चले जाइए, नरेंद्र मोदी जी की मास अपील है। इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता। मास अपील को नहीं नकार सकते सर, लेकिन कांग्रेस ये एलेज करती है कि आप इसको भी नहीं नकार सकते कि भाजपा सिमट गई है नरेंद्र मोदी में। अगर एक लीडर के पीछे पूरी पार्टी होगी। यदि हम लोगों ने अटल जी को प्रोजेक्ट किया था तो भाजपा सिमट गई थी। जब हम लोगों ने अडवाणी जी को प्रोजेक्ट किया था तो भाजपा सिमट गई थी। वैसे भाजपा एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो कभी सिमटती नहीं। यहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन का, संगठन का एक अपना महत्व है। और संगठन ने ही अटल जी को पहले प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया था। संगठन ने ही अडवाणी जी को भी प्रोजेक्ट किया था। और संगठन ने ही, पार्टी ने ही नरेंद्र मोदी को भी प्रोजेक्ट किया। आपको लगता है 2014 दो आइडल्स के बीच में होगा कि आइडियोलॉजीज के बीच में होगा सर? नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी होगा या कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होगा, लेकिन वास्तव में लीडरशिप का भी महत्व होता है कि जो गवर्नमेंट बनने जा रही है उस गवर्नमेंट को लीड कौन करेगा, इसका भी एक महत्व होता है। तो ये सब सारी चीजें कंसिडरेशन में होती है। तो द प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट्स आर एग्रेसिव एंड द पार्टी प्रेसिडेंट्स आर काम एंड कूल। वो सटली निकाल ले जाते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट आपस में बिल्कुल लड़ भिड़ रहे हैं पूरी तरह। इज इट अ स्ट्रेटेजी सर? हमारा प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट जो है वो एग्रेसिव नहीं है। हमारे नरेंद्र मोदी में किसी प्रकार का कोई एग्रेशन नहीं। यदि एग्रेशन देखने को नहीं मिलेगा तो भारत की प्रतिष्ठा पर यदि कोई आंच पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसके लिए एग्रेशन दिखाई देगा। भारत में गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, यह दूर होनी चाहिए। इसके लिए एग्रेशन उनका दिखाई देगा। आपको लगता है शिवराज सिंह चौहान दोबारा जीत जाएगा? तिवारा जीतेगा, तिवारा जीतेगा, तिवारा। बिल्कुल नहीं। आप बताइए, आपके हिसाब से शिवराज सिंह चौहान ने क्या किया है आम आदमी के लिए, आपके लिए? बीपीएल कार्ड भी बनवाए हैं और विधवा पेंशन भी करवाई है और सड़क, बिजली, पानी का भी सुविधा दिया, स्वास्थ्य की दी है। Final rally of the day at Gwalior, the Scindia Bastion. कि कांग्रेस के लोग यदि आजादी हासिल होने के बाद इसी तरीके से सरकार बनाते रहे और चलाते रहे तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। क्या करना चाहते हैं लोग भारत? इतना आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी भाइयों, उस दिन यदि इस प्रकार की नापाक हरकतें नहीं की जाएंगी तो हम अपने सेना के जवानों को खुला हाथ देंगे ताकि वो हमें शौर्य और पराक्रम का परिचय दें। This is the last rally point of Rajnath Singh in Madhya Pradesh. This is Gwalior, the city centre of Gwalior, and you could see hundreds and thousands of people have gathered here to listen Rajnath Singh here. The importance of these assembly polls is being understood by Rajnath Singh, who's on dais alongside the local leaders here in Gwalior. He has been holding 4 to 5 rallies in a day, and that was a similar thing which was followed today as well. First in Bhindin, Morena, and now in Gwalior, we are seeing this final rally of the day. Rajnath Singh has been very critically analysing and using a mixture of local as well as national political issues. बहनों भाइयों के संकट के भंवर में फंसा हुआ और संकट से फंस से कोई निकाल सकता है तो आप सबके सहयोग से हम लोग इसके लिए वचनबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं, हम इसको निकालने की कोशिश करेंगे। Thank you, sir. Over here, we bid goodbye to the BJP president. He was calling it a day, and so were we. समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजनाथ जी। सर, एक दिन में 4 रैली इस तरह से चलती रहेंगी, लेकिन एक आखिरी टाइम, इतनी रैली आपने देखा, आपका परसेप्शन क्या है? मध्य प्रदेश में दोबारा आएगी भाजपा सरकार? आपने देखा कि ग्वालियर की जो सभा थी वो कितनी शानदार सभा थी, और वैसे ही एक जनता के बीच माहौल बना हुआ है। जनता चाहती है कि इस बार मध्य प्रदेश की सरकार भी जीत की हैट्रिक बनाए, और केवल जनता के मूड को देखने के बाद ही मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि जितनी भी सर्वे एजेंसीज ने भी जो तो अब तक ओपिनियन पोल के रिजल्ट्स दिए हैं, उस आधार पर भी यह बात कही जा सकती है विश्वास के साथ कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बन रही है। Well, that's it in this special edition of Politics First. We spent more than 20 hours with the BJP National President Rajnath Singh while he was going through several rallies in a day in the state of Madhya Pradesh. It has been a long day for the BJP National President, but the sense which we got
from the BJP top leadership is that they understand it's not going to be a cakewalk for them this time around in these central Indian states of Madhya Pradesh and Chhattisgarh. Though they seem confident, but at the same point of time, they are not leaving even an iota of a space so that Congress could just nudge them down. That's why we are seeing several rallies by the BJP top brass, because this for BJP is nothing but master plan for 2014, and that is something with which they would not want to take even the slightest possible mistake. They would not want to do any kind of mistake with their 2014 master plan. We will try to bring you as the information unfolds, as things unfolds. Thank you for watching.